Hello students, I am going to continue with the chapter Integration of 12th Standard. Exercise 3.2c. So before going to start with the exercise, just we are going to see the type of the example in which we see these two types of pattern. So the first type is px plus q upon ax square plus bx plus c dx, and the second pattern is px plus q upon root ax square plus bx plus c. So both the patterns are similar, just in the second pattern there is a square root. So this is type first, and we say that is this is type second. So the examples in exercise 3.2c are based on these two types. So before going to start with the example, just we are going to study this pattern or this type first. So in exercise first, that is 3.2a, we learn this pattern, that is we substitute the a into d by dx of such type of pattern for the numerator. Similarly here the first step, that is we have to substitute the numerator by this one. So numerator is px plus q, which is equals to, we have to substitute, that is a d by dx of x square plus bx plus c plus b. Here a and b, these are the constants. After that the second step, that is after that we have to find out the derivative of this part, and we have to multiply the bracket by a, and after that we have to equate the coefficients of the x and constant of both sides, and after this we have to find out the value of a and b, and after finding these values we have to write the step 2. In step 2 what we have to write down, a, that is the value which we find. मतलब हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट किया था a और b की, वो वैल्यू हमें यहाँ पे पुट डाउन करनी है. a की वैल्यू हम पुट डाउन करेंगे, ये जो है वो ऐसे लिखेंगे, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यहाँ पर हम सिर्फ ये ब्रैकेट लिखने वाले हैं प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. द डिनोमिनेटर इज एज इट इज़. आफ्टर दैट वी गोइंग टू सेपरेट दिस टू टर्म्स, that is a into d by dx of x square plus bx plus c upon x square plus bx plus c dx, and the second one, that is b upon x square plus bx plus c dx. After that we taking this constant outside the integration sign, and now here we see the pattern, that is जो फंक्शन नीचे है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है. तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो आपको पता है, दैट इज़ वी हैव टू यूज़ log of f of x. एंड ये जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, इट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैटर्न. सो फॉर दिस पैटर्न वी हैव टू टेक दिस कांस्टेंट, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आउटसाइड एज अ कॉमन. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड टर्म यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, एंड आफ्टर दैट वी गोइंग टू add and subtract it in this formula in this example, and after that we get the example like the 7 formula group, that is 1 upon x square plus a square और x square minus a square. वो जो हमने 7 फॉर्मूले के ग्रुप देखा था, वो जो ग्रुप है वो ग्रुप का कोई तो फॉर्मूला इससे मैच होगा, और वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है. तो ये जो 4 स्टेप्स है वो 4 स्टेप्स हम यहाँ पे करने वाले हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट. अगर हमें इस पैटर्न का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, तो ये जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर हम रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं. उसके लिए जो स्टेप है वो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज़ a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी. आफ्टर दैट वी गोइंग टू सेपरेट दिस टू, दैट इज़ a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. बिफोर गोइंग टू सेपरेट, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं. a जो है वो वैसे लिखेंगे हम, वी टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस पैटर्न, एंड वो जो ब्रैकेट आएगा वो ब्रैकेट को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस b उसको ऐड करेंगे. आफ्टर दैट वी इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. जब हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब उसके बाद हमें ये स्टेप करना है, दैट इज़ a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. After that the third step, that is we have to separate these two terms. So a into d by dx of x square plus bx plus c upon x square plus bx plus c dx plus b upon x square plus bx plus c. After that we taking this a outside, and we get this pattern, that is f dash of x upon f of x, and the answer is log of f of x. And this pattern is of quadratic equation pattern, so we have to convert this into the
7 formula group and we will get the answer. And the same step we have to use for this pattern. दिस दोनों पैटर्न में फ़र्क इतना ही है, तो जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर सिर्फ स्क्वायर रूट में है, तो जहाँ पर भी डिनोमिनेटर है वहाँ पे हम स्क्वायर रूट करेंगे, बाकी सब स्टेप्स यहाँ पर वैसे ही हमें लिखना है. दैट इज़ ये स्टेप यहाँ पर भी होगा सेम, यहाँ पर भी वो सेम होगा, सिर्फ जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है उसको हमें रूट देना है. दैट इज सेम स्टेप वी हैव टू यूज़, जस्ट वी हैव टू यूज़ स्क्वायर रूट फॉर द ओनली फॉर द डिनोमिनेटर टर्म. अदरवाइज हमें सेम करना है, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट में आएगा वो कैसे होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ये, और ये जो क्वांटिटी होगी वो रूट में होगी. तो इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला लर्न किया था, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो इसका जो आंसर रहता है वो क्या रहता है, दैट इज़ यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, दैट इज़ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 रूट एफ ऑफ एक्स. तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है. एंड ये जो है वो ऐसे ही आएगा, तो हमें यहाँ पे वो 7 फॉर्मूला के ग्रुप के जो फॉर्मूले थे वो उसमें से एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है. सो इंटीग्रेशन के जो भी एग्जांपल्स है उसके लिए हमें सिर्फ उसका टाइप और उसका पैटर्न ध्यान में रखना पड़ता है. तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है, और ये पैटर्न आता है तो हम किस टाइप के स्टेप्स फॉलो करते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4. तो पैटर्न और उसके स्टेप्स अगर आपको याद है तो आप इजीली एक्सरसाइज 3.2c सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको पैटर्न ध्यान में रखना है और उसके स्टेप्स. नाउ वी जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.2c. इसमें आई थिंक 9 एग्जाम्पल्स है, ओनली 1 क्वेश्चन इज देयर. सो इवेल्युएट, सो द पैटर्न इज, तो देखो आपको पैटर्न कंपेयर करना है. तो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. अगर आपको पैटर्न नहीं आइडेंटिफाई करना आता है तो ये एग्जांपल आपको थोड़े हार्ड जाएंगे. तो जस्ट वी हैव टू कंपेयर दिस विद द फॉर्मूला. आपको फॉर्मूला अगर कंपेयर करना आता है तो वो आपको थोड़ा इजी जाएगा. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर रिप्लेस करना है. सो 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b. आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन. तो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, 2x प्लस 6 एंड दिस a इज एज इट इज एंड b इज ऑल्सो एज इट इज. आफ्टर दैट वी गोइंग टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट बाय दिस a. सो वी गेट हियर 2ax प्लस 6a प्लस b. तो ये जो है वो पूरा कांस्टेंट वाला टर्म है और ये x वाला टर्म है. तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे. तो x वाला टर्म और यहाँ पर भी x वाला टर्म, तो ये जो दोनों बीच में इक्वल टू साइन है, सो ये दोनों इक्वेट होंगे. सो 2a इज इक्वल्स टू 3 एंड सो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ a एज अ 3/2. तो हमें a की वैल्यू यहाँ पे मिल गई. नाउ सी द सेकेंड इक्वेशन, दैट इज 6a प्लस b इज इक्वल्स टू 4. 6a प्लस b इज इक्वल्स टू 4. तो वैल्यू ऑफ a इज 3/2. सो 6 इंटू 3/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 4. सो 2 3s are 6. सो 3 3s are 9 प्लस b इज इक्वल्स टू 4 एंड सो b इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9. तो b का वैल्यू हमें मिला -5. तो हम यहाँ पे देखते हैं a इज 3/2 एंड b इज -5. तो मैंने आपको बोला था ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होगा. यहाँ पे स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है a और b, a एंड b की, तो ये वैल्यू लेके हम ये जो है वो न्यूमरेटर में इंस्टॉल करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट इज़ i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, सब्स्टिट्यूट करने के लिए 3x प्लस 4 हम नहीं लिखेंगे, ये रिमूव करके हमको ये सब्स्टिट्यूट करना है. तो a, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 3/2. आफ्टर दैट येस डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाली टर्म हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड द वैल्यू ऑफ b इज -5. तो हम यहाँ पे पुट करेंगे and the denominator is as it is, that is 6x square plus 6x plus 5. After that we going to separate these two terms, मतलब हम denominator हर एक term को देंगे numerator के. So we taking 3/2 outside the integration, d by dx of x square plus 6x plus 5 upon x square plus 6x plus 5 dx minus we again we taking this 5 upon, ये पार्ट है तो 5 को हम इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे. So 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x square plus 6x plus 5 dx. तो हम यहाँ तक आने के बाद हम ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं,
अदरवाइज हम इसको ऐसा कंसिडर भी कर सकते हैं, दैट इज आई इज इक्वल टू, ये टोटल पार्ट जो है इसको हम I1 कंसिडर करेंगे और इसको हम I2 कंसिडर करेंगे। I1 का आंसर फाइंड आउट करेंगे, बाद में I2 का आंसर फाइंड आउट करेंगे, फिर से हम ये वैल्यू इसमें डालेंगे। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसा स्टार इक्वेशन करके बोलती हूँ। आफ्टर फाइंडिंग दिस वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू इन द स्टार इक्वेशन। तो I1 का जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, I1 इज इक्वल टू 3/2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx. So you see here the pattern, that is f dash of x upon f of x is equals to log of f of x. So 3/2 log f of x मतलब x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 3/1. So ये आंसर हुआ I1 का। आफ्टर दैट वी गोइंग टू फाइंड आउट द, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, आपको भी एग्जाम में ये लिखना है कि हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया। आफ्टर दैट वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ I2. सो I2 इज इक्वल्स टू 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx. So 5 integration of 1 upon, so these are the two terms, and just here we have to find out the third term. So how? By using the formula half into coefficient of x bracket square. So 2 3s are 6, so 3 square that is 9. So 5 integration of 1 upon, here we going to add this 9 and subtract this 9. So x square plus 6x plus 9, this 5 is as it is and minus 9. मतलब हमने यहाँ पे 9 ले लिया और उसको कैंसिल भी कर दिया. So there is no any change in the example. So I2 is equals to 5 integration of 1 upon, so taking the square root of x and the sign of the middle term and the square root of the last term bracket square. If we open this we will get these three terms, and this plus 5 and minus 9 का आंसर है minus 4 dx. Now the next step. So here we get that is I2 is equals to 5 1 upon x plus 3 bracket square. यहाँ पे 4 था, it is the square of the 2. तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, that is x square minus a square. So what is the formula? तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए, so 1 upon x square minus a square dx is equals to 1 upon 2a log x minus a upon x plus a plus c. So we are going to use this formula. So 5 यहाँ पे 1 upon 2a, so 2a is, so what is the value of a here, that is 2 log, so x minus a, तो x plus 3 minus 2 upon x plus 3 plus 2 and plus c2, ये सेकेंड वाला कांस्टेंट यहाँ पे आया. So I2 is equals to 5 1 upon 2 2s are 4 log, yes ये plus 3 and minus 2, the answer is 1, and plus 3 plus 2, the answer is plus 5 plus c2. So finally here we get the values of I1 and I2, and now we are going to put down this in the star equation. So which is our star equation, that is I is equals to I1 minus I2. So what is the value of I1? तो हमने पहले यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा था 3/2 log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1. तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट डाउन की 3/2 log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1, and the value of I2, that is 5 into 1/4, that is 5 upon 4 log x plus 1 upon x plus 5 plus c2. तो यहाँ पे दो कांस्टेंट है c1 एंड c2, तो इन दोनों का एडिशन के लिए हम एक ही कांस्टेंट यहाँ पे रखेंगे, दैट इज c. एंड सो माय फाइनल आंसर इज 3/2 log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5/4 log x plus 1 upon x plus 5 plus c. So these are lengthy examples, but if you get the idea to solve this one, so you can easily solve these examples. Now see the second वाला example भी first example जैसे ही है. तो first one we have to remove this numerator by substituting a into d by dx of x square plus 4x minus 5 plus b. So here we taking the derivative of this one, so a is as it is, the derivative of x square is 2x plus 4 plus b. So we going to multiply the bracket by a, so यहाँ पे हमें मिला 2ax plus 4a plus b and 2x plus 1. Now we equating the coefficients on both sides, equal coefficients on both sides. तो यहाँ पे x वाला टर्म है, तो यहाँ पर भी x वाला टर्म है. So we going to equate this coefficient, that is 2a is equals to 2. So here we get a is equals to 1, and these are the constant terms. So the 4a plus b is equals to 1. So here we get the value of a. So we are going to put down this value of a here, that is 4 into 1 plus b is equals to 1.
So the value of b is equals to 1 minus 4 is equals to minus 3. So here if we get the value of a as a 1 and b as a minus 3. Now we are going to put down this value here and substituting, that is we removing this numerator by substituting this. So my second step, that is substitution, integration of, so a, the value of a is 1. So 1 into d by dx of this term is as it is, and the value of b is minus 3. So instead of writing numerator, we write this one, and the denominator is as it is, that is x square plus 4x minus 5. Now we are going to separate this denominator. So 1 is there, so we put it outside the integration sign. So d by dx of x square plus 4x minus 5 upon x square plus 4x minus 5 dx minus integration of 3 upon same, that is the x square plus 4x minus 5 dx. So after that, here we see that is the pattern, that is integration of f dash of x upon f of x is equals to log of f of x. So we are going to use this formula here, and so the value of this term we can easily find. But before that, we are going to consider it as this total quantity we consider as I1 and this quantity as I2. And so my star equation is this, that is I is equals to I1 minus I2. So I1 is equals to d by dx of x square plus 4x minus 5 upon the same quantity dx here. So the pattern is integration of f dash of x upon f of x. So the answer is log of f of x. So log of x square plus 4x minus 5 plus c1. After that, we are going to solve the I2. So the I2 is 3 upon x square plus 4x minus 5. So here we are taking 3 as a common outside. So I2 is equals to 3 integration of 1 upon x square plus 4x minus 5 dx. So here we are going to find out the third term. So by using the formula, half into coefficient of x bracket square. So 2 2s are 4, the square of the 2 is 4. So 3 integration of 1 upon x square plus 4x plus 4 minus 5 plus 4. So I2 is equals to 3 integration of 1 upon, it is a perfect square, so we are taking the square root of the first term, sine of the middle term and the square root of the third term, that is x plus 2 bracket square. If we expand this bracket, we will get these 3 terms. And minus 5 minus 4 का answer है 9, that is minus 9. So here we have to write down this second term also in the square form. So 3 integration of 1 upon x plus 2 bracket square minus 3 square. So here we see the formula, that is 1 upon x square minus a square, and the answer is 1 upon 2a log x minus a upon x plus a plus c. So 3 into 1 upon 2a, so 2a का answer है 3. So 3 will get cancelled, log x plus 2 minus 3 upon x plus 2 plus 3. So 3 will get cancelled, and here we get 1 by 2 log. So minus 3 and plus 2, that is minus 1 and upon 5. So x minus 1 upon x plus 5 plus c2. So here we get the value of I2, and यहाँ पे हमने I1 का value find out किया था. Now we are going to put down this in the star equation. So this is my star equation, just I am going to write it. So I is equals to I1 minus I2. तो I1 का जो आंसर था यहाँ पे log of x square plus 4x minus 5, x square plus 4x minus 5 plus c1, and I2 का आंसर तो ये है, तो हमने यहाँ पे लिखा. So here we see the 2 constant. After taking the addition, we get only 1 constant. So for that we write here c. So log x square plus 4x minus 5 minus half log x minus 1 upon x plus 5 plus c. So this is the answer. And the example number 3rd is same that of the first and second. Just I am going to show you this the example. Third one is 2x plus 3 upon 2x square plus 3x minus 1. So similar method we have to apply for, that is that of the 1 and second. तो फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम के लिए हमने जो मेथड फाइंड आउट की थी, जो मेथड हमने यूज़ की थी, वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. तो ये एग्जाम्पल आपको खुद से करना है. सो दिस एग्जाम्पल इज़ फॉर योर होमवर्क. Now we are going to see the example number 4. So in this example number 4, there is a square root pattern.
सो फर्स्ट 3 एग्जाम्पल में यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं था, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है. सो फोर्थ एग्जाम्पल दैट इज 3x + 4 अपॉन रूट 2x² + 2x + 1. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए जो मेथड फॉलो की थी, सेम मेथड हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं. तो 3x + 4 के बदले हमें जो सब्स्टिट्यूट करना है वो है a × d/dx. हम सिर्फ ये क्वांटिटी लिखेंगे, स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे. 2x² + 2x + 1 + b. मतलब जो हमने फर्स्ट 3 एग्जाम्पल के लिए किया था वही सेम हम यहाँ पे करने वाले, प्लस b. थ्री एक्स + 4. सो a, तो यहाँ पे जो उसका डेरिवेटिव है वो है 2 × 2 = 4x + 2 + b. तो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिला 4ax + 2a + b. तो 4ax एंड यहाँ का x, तो वो दोनों क्वांटिटी हम कंपेयर करेंगे. सो 4a = 3. सो यहाँ पे हमें मिलेगा a = 3/4. यहाँ पे 2a + b = 4. a की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की है, दैट इज 3/4. 2 × 2 = 4, सो 3/2 + b = 4. सो b = 4 - 3/2. टेकिंग LCM, दैट इज 4 × 2 = 8 - 3, दैट इज 5/2. सो दिस इज द आंसर ऑफ a एंड b. जैसे हमने फर्स्ट 3 एग्जाम्पल में वैल्यूज फाइंड आउट की थी a एंड b की, वैसे हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट की. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो integration of the value of a is 3/4 d/dx of 2x² + 2x + 1 plus the value of b is 5/2 upon the denominator is same which is in the root. So root 2x² + 2x + 1. ये सिर्फ चेंज यहाँ पे है, अदरवाइज these examples are same that of the first 3 example. सिर्फ यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल में हमें दिया है स्क्वायर रूट में वो डिनोमिनेटर, तो वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना है. After that we going to separate these two terms. So 3/4 को हम बाहर लेंगे, d/dx of 2x² + 2x + 1 dx and the denominator is same जो यहाँ पे है वो वही हमने यहाँ पे लिखा है, प्लस 5/2. ये डिनोमिनेटर हम इसको भी देंगे, दूसरे वाले टर्म को डिनोमिनेटर में वो 2x² + 2x + 1. So after that 3/4 is as it is, and you know this pattern, that is, so we know the formula, that is f' of x upon root f of x is equals to 2 root f of x. तो ये जो फॉर्मूला है 3/4 is as it is and 2 root f of x. so f of x जो है हमारा वो है 2 root f of x, that is 2x² + 2x + 1 into this 5/2 as it is. Here ये जो 2 हमें दिखाई दे रहा है, इस 2 को हम कॉमन करके बाहर लेंगे, दैट इज़ 1/√2. जब वो बाहर आएगा तो वो √2 में होगा. x², ये 2/2, दैट इज़ 1x. यहाँ पे 1 को भी वो 2 डिवाइड होगा. हम कॉमन जब लेते हैं तब जो नंबर हमने कॉमन लिया है उससे हम हर एक नंबर को डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 टर्म्स हमें दिखाई दे रहे हैं उसके हमें थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना है. ये कांस्टेंट ऐसे ही रखते हैं हमें, इसके लिए हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं. नाउ यहाँ पे 2 × 2 = 4, 3/2 एंड ये क्वांटिटी अब यहाँ पर ऐसे ही रहेगी, ये हमें सिर्फ कंटिन्यू करना है. सो 5/2√2. तो ये जो है इसका थर्ड टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो यू नो द फॉर्मूला, दैट इज हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर. तो 1/2 का स्क्वायर, दैट इज़ 1/4. सो 1/4 हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे और हम उसको सब्सट्रैक्ट भी करेंगे. तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. किसका परफेक्ट स्क्वायर है. सो वी टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म, साइन ऑफ द मिडल टर्म एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द लास्ट टर्म. सो x + हाफ ब्रैकेट स्क्वायर, एंड ये दोनों का जो आंसर है वो होगा प्लस 1/4. तो कैसे आया वो आंसर मैं दिखा दी हूँ आपको. सो 1/2 एंड माइनस 1/4. तो यहाँ पे हम LCM लेंगे. So the LCM is 4. So we are taking cross, that is 4 - 2. 4 - 2, that is 2/4. And 2/4 को हम डिवाइड करेंगे. 2 × 2 = 1 and 2 × 2 = 4. तो यहाँ पे हमें मिला 1/2. सॉरी, यहाँ पे 1/2 होगा. नहीं, अगर यहाँ पे हमने LCM अगर 4 लिया है तो यहाँ पे आएगा 2 × 2 = 4.
सो यहाँ पे 2 माइनस 1 आएगा. सो द आंसर इज़ करेक्ट, दैट इज़ 1/4 ही है. तो मैं अलग तरीके से आपको दिखाती हूँ. आप लोग जो जिस टाइप का मेथड फॉलो करते हैं वो मैं दिखा दी हूँ. आप लोग ऐसे करते हैं कि दैट इज़ 4 2s are 8. तो 8 एलसीएम आया. सो 4 1s are 4 एंड यहाँ पे 2. सो 4 माइनस 2 दैट इज़ 2/8. एंड 2/8 का आंसर जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/4. तो यहाँ पे ये जो 1/4 है वो वहाँ पे आया है. सो ये 1/4 हम स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1/2 का स्क्वायर. तो 5/2√2 log x प्लस 1. ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है? यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है. तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. तो x इज़ एज इट इज़ ये वाला प्लस रूट x प्लस हाफ ब्रैकेट स्क्वायर प्लस हाफ ब्रैकेट स्क्वायर. एंड यहाँ पे हमने ये जो दोनों का इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने I1 I2 सेपरेट किया था. यहाँ पे मैंने वो डायरेक्ट किया है. तो 3/2 ये जो है आंसर है वो ऐसे ही है यहाँ पे रहेगा. हमने ऑलरेडी इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया है. तो यहाँ पे जो आंसर है वो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है. अभी ये जो है ये हम सॉल्व करने वाले हैं. ये टर्म ऐसे ही नीचे आएगी. 5/2√2 log ये भी टर्म ऐसे ही आएगी. सो एक्स प्लस हाफ ब्रैकेट स्क्वायर एंड हाफ स्क्वायर. अगर ये हम सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है? तो ये जो है वो यहाँ से हमने ले लिया. ये कहाँ से ले लिया? यहाँ से. और ये कहाँ से लिया? यहाँ से. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस हाफ. तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ प्लस सी. सो दिस इज द आंसर ऑफ द फोर्थ एग्जाम्पल. And similarly you have to solve the example number 5. So example number 5 is for your homework. So the remaining examples we'll see in the next lecture. Thank you.